اقرا ٹیوٹوریلز ہے، یہ تقریباً 1975 میں ایجاد ہوا۔ فون سے اوائڈ کرو، کیونکہ یہ جو ہے کرونا آنے کے بعد جو ہے بچوں کو آن لائن ہونے کی وجہ سے ہر بچوں کو آئی سکوینٹ ہو زبان جائے کو ہر طریقے سے بچایا جا سکے، کیونکہ کئی زاویوں سے اردو زبان پر خواہ حملے 40 پر 4واں اجلاس ہے ہمارا، یوم والدین رکھتے ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ ہمارے سے پاس محروم ہونے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین پہلے اس پر غور کرنا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اردو پڑھائیں۔ اردو سے پیرنٹس کو جو ہے الگ جو ہے کلاسز ختم ہونے کے بعد ہمیشہ جو ہے روزانہ جو ہے دینا چاہتا ہوں کہ میسور کے مہاراجا جن کی زبان کنڑی ہے، ان کا جو شادی کا رخہ تھا وہ فارسی اور اردو میں بیان رکھ کر حضور کی ایک ایک سنت پر ہر آدمی آ کر یہاں سننا، بیان سننا، عمل کرنا، ہمارا یہ مقصد ہے۔ سو ہر جوان کے ہاتھ میں آج موبائل عام ہے، سبھی یوٹیوب میں روشن کرے، اور ایمان کی اگر بقا چاہتے ہیں تو یہ بچوں کو قرآن کی دولت سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اللہ کو ایک ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سوچوں سے بھی دور تھا، ماتھے پاؤں بھی تبتے سے، پہلا فرض کلمے پڑھنا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا رمضان کے روزے رکھنا، 14 حج کرنا، 5واں زکوٰۃ دینا۔ تعلیم بھی ہے مصباح العلوم کے، جو پچھلے 40 پر 4 سال سے اپنے جو پچھلے 40 پر 4 سال سے اپنے کے بعد حضرات علماء کے بیانات سنوا کر، حضرات قراء کی تلاوتوں کو سنوا کر بہترین کھانے کا بھی نظم کرتے ہیں، اور ادارہ اقرا ٹیوٹوریلز کی جانب سے اور تمام کی جانب سے اور محلے کی جانب سے اور اقرا ٹیوٹوریلز کی جانب سے، خیر والدین کی جانب سے بھی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ قابل جو ہوئے ہی ایسے عالموں کے سائے میں ہی ہوئے ہیں۔ آج بھی شعراء کے پورے اشعار بھول بھی جائے، نہ مجھے غصہ آئے گا نہ ان شعراء کو غصہ آئے گا، لیکن یہ جواب نہیں بھولنا، کیونکہ جواب بہت سخت قیمتی جواب ہے اور بہت ضروری جواب ہے۔ خوش بھی ہو جاؤ گے آپ۔ آج بھی میں مانتا ہوں کہ کچھ محلے، کچھ گاؤں، کچھ شہر، کچھ ریاستیں، کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں کے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، ان کو خدا کی معرفت بتانے والا کوئی نہیں، لیکن وہاں نبی کی ضرورت نہیں، نبی کے امت کے علماء کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر بری بات ہے، جو ہوا ہوا لیکن اردو کی حفاظت کرو۔ حجی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا۔ محترم حاضرین، بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ آج اس جلسے کی نسبت یوم اردو، یوم والدین اور سب سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔
हमारे डॉक्टर जनाब इस्माइल साहब हर साल सुनते हैं कहा मा नक़सा माल मिन सदका, अगर अपने मालों में से सदका करते हैं तो कम नहीं होता बल्कि इजाफा होता है। अल्लाह ताला आपकी दौलत में, आपके ईमान में, जो नेक काम कर रहे हैं उसमें तरक्की अता फरमाए और नजर बद से महफूज फरमाए। खुसूसन यौम उर्दू के ताल्लुक़ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर इस्माइल बेग साहब उर्दू के बारे में बहुत ही संजीदा हैं और उसके लिए बहुत कोशिश करते आ रहे हैं ताकि उर्दू की तरक्की व तरवीज हो सके। उसी सिलसिले में यौम उर्दू हर साल मनाते आ रहे हैं और कई सालों से मैं भी यौम उर्दू पर आता रहा हूँ इनके दावत पर। और जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है, हमें चाहिए कि जिन साहिबान की उर्दू ज़बान मादरी ज़बान है वो सबसे पहले कोशिश करें कि उर्दू ज़बान को हर तरीक़े से बचाया जा सके, क्योंकि कई ज़ावियों से उर्दू ज़बान पर खामखा हमले किए जा रहे हैं। इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीक़ा ये है कि सबसे पहले उर्दू को हमारे घरों में तरक्की दी जाए, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। यहाँ कर्नाटक में गवर्नमेंट उर्दू स्कूल हैं, तकरीबन 4000 से ज़्यादा गवर्नमेंट उर्दू स्कूल हैं और दीगर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी कुछ स्कूल्स उर्दू पढ़ा रहे हैं। हमें वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को उर्दू पढ़ने में तरगीब दें और हर घर में उर्दू अखबारात मंगाएं ताकि उर्दू पढ़ने की आदत पड़े। और उर्दू जो जितने चैनल्स हैं उर्दू के, उनको भी हौसला अफजाई के लिए उर्दू चैनल्स वाच करें ताकि एक तो कौम के मामलात मालूम हों और हमारे दीनी मामलात भी उर्दू चैनल्स में ही नशर किए जाते हैं। लिहाजा हमारे घर वालों को तरगीब देनी चाहिए। बच्चे महरूम होने के लिए बेहतरीन तरीक़ा यह है कि वालिदैन पहले उस पर गौर करना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, उर्दू से तरगीब दें। अभी मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर पे अगर उर्दू को मैं बच्चों को स्कूल में उर्दू की तरगीब ना दूँ तो फिर बच्चे खुद उर्दू पढ़ें, ये नहीं हो सकता। बेहतर है कि वालिदैन उस पर ज़्यादा ध्यान दें और रोज़ाना उर्दू अखबार घर में पढ़ाएं बच्चों को और औरतों को, और ख़ुद भी पढ़ें ताकि बच्चों को उसकी तरगीब मिल सके। और जो कुछ प्रिंट करा सकते हैं, मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ कि मैसूर के महाराजा जिनकी ज़बान कन्नड़ी है, उनका जो शादी का रुखा था वो फ़ारसी और उर्दू में प्रिंट हुआ था। मेरे दोस्त तलकार चिकरंगे गौड़ा वो कार्ड भी दिखाते हैं कि उनका शादी का रुखा जो है वो उर्दू और फ़ारसी में प्रिंट हुआ था। लिहाजा हमें, और सारी दुनिया में उर्दू बोली जाती है, उर्दू ज़बान, और हमारे हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में, सारी रियासतों में उर्दू ज़बान बोली जाती है। प्रोग्राम में हमें पहले से भी तकरीबन 40 पर 4वां इजलास है हमारा। यौम वालिदैन रखते हैं जिसमें कसरत के साथ हमारे पास जलसे में यौम वालिदैन शरीक रहती। तो अपने अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए उन्हें पूरे वालिदैन यहाँ जमा होती और उनके बच्चों को हमें तकरीबन 1 महीने से पहले हमें तैयार करती उनको नहीं दीनी प्रोग्राम क्या करना है, दीनी मुजाहरे कैसा करना है, नात हमद या तकारीर हुजूर की सीरत पर कैसा बयान करना, ये तकरीबन हमें महीने 1.5 महीने से उनको तैयार कर को स्टेज पर ले लगाती। छोटे छोटे बच्चे भी रहती, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के। तो हमें चाहती है कि हमारे इदारे में यानी दीन की अहमियत ज़्यादा होना, यानी दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी होना है। यानी कन्नड़ा की तालीम, इंग्लिश की तालीम के साथ है ना, अरबी की तालीम के साथ उर्दू को ज़्यादा अहमियत देते हैं हमें। मुसलमानों के बच्चे कॉन्वेंटा में पढ़ती, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ती, हर आदमी को आज इंग्लिश आता, लेकिन उर्दू अखबार पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। उर्दू एक रखा बना दिए तो रखा देख को आदमी रख लेता, उसमें क्या है बोल को मालूम नहीं रहता। फिर भी उन्होंने जो है दूसरे बच्चों को देख कर उन्हें भी पढ़ना चाहती, तो हमें वो मकसद से यौम उर्दू मनाती। और यौम वालिदैन मनाने का मकसद यही है कि पेरेंट्स को जमाना, बच्चे उनके प्रोग्राम को देखना। तो हमें इदारे में क्या कर रही, हमें क्या मेहनत पड़ रही, वो जो है पेरेंट्स को मालूम होना।
ये मकसद को सामने रखकर हमें यौम वालिदैन मना दी। तो इसी जो है 2 प्रोग्रामों के दरमियान सीरतुल नबी का इजलास भी रखती। तो इसी में जो है एक प्रोग्राम तो रखनी, 2 प्रोग्राम रखनी। अब सीरतुल नबी का बयान रखकर हुजूर की एक एक सुन्नत पर हर आदमी आकर यहाँ सुनना, बयान सुनना, अमल करना हमारा ये मकसद है। सो अपना ये नहीं मकसद है कि पब्लिक ज़्यादा हो, आवाम ज़्यादा हो, बल्कि हमारा मकसद ये है कि थोड़े ही क्यों ना हो, लेकिन एक भी हमारे जलसे में आकर जो है उन्हें कुछ अमल कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाता। तो ये मकसद को सामने रखकर हमें सीरतुल नबी का बयान जो है हर साल रखती और बच्चों को जो है इंडिविजुअली अप्रोच करती ताकि जो है इसमें जो है फ्यूचर है, ये करे बोलो तो इसमें फ़ायदा आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है, दीन और जो है दुनिया दोनों टाली कर को जो है इंशाल्लाह जो है एक उनको क्लासेस लेती ताकि जो है उनको फ़ायदा प्रेजेंट भी हो, फ्यूचर में भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग के बाद बच्चों का जो है साल में एक मरतबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने सबके रूबरू एक हिम्मत अफजाई के वास्ते एक प्रोग्राम मुनक़िद करती। उसमें जो है छोटे बच्चे 3 साल से लेकर जो है 12 साल की उम्र, 15 साल की उम्र तक रखते रहती और कम उम्र में जो है उन्होंने जो है पढ़ को नहीं रहते और जो है उस वक्त जो है हालत नहीं रहते उनको पढ़ने के वास्ते। तो वही से काम 11 जन को जाले करती, वही से जो है आदमियों को जो है पिकअप करती, पिकअप कर को रोज़ाना उनको जो है उनके टाइमिंग के हिसाब से एक 45 मिनट्स अभी भी जो है अंग्रेज़ी तालीम या उर्दू तालीम, उर्दू सीखना, उर्दू लिखना पढ़ना आज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनके ऊपर मेहनत कर लगी। और जो है उनका मकसद क्या बोलो तो कैसा जो है अगर उस वक्त हालत उस वो टाइम में एजुकेशन के टाइम में नहीं पढ़ सके तो एटलीस्ट ये टाइम में जो है सिख को जो है उनके इन्फेंट्स, उनके ऑफस्प्रिंग जो भी आते हैं उनको सिखान दे ताकि एजुकेशन जो है फैलेंदे बोल को एक किचक मकसद से अल्हम्दुलिल्लाह जो है तैयारी वाले सब जो है कई सालों से ट्यूटोरियल जो है अमीनुल उलूम बोल को जो है मावल्डी से जो है इसका जो है इनिशिएट कर रही है। मुनक़िद अमीनुल उलूम बोल को मदरसा अमीनुल उलूम बोल को रखे और वहाँ जो है मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे थे हम मदरसे में, तकरीबन जो है 250 बच्चे थे। उनकी फ़ीस जो है 5 रुपये थी, फ्री रखे बोलो तो आते नहीं, कब होना तब आती, तब होना तब जाती बोल को सिर्फ 5 रुपीज़ थी फ़ीस, तब से चल लिया करा। वो 5 रुपीज़ भी कई बच्चे देते, कई बच्चे नहीं देते। मुसलसल जो है उस्तादों को रखो चलाते, सुबह और शाम जो है मदरसा चलता, दोपहर में जो है ट्यूशन ट्यूटोरियल्स चलते बच्चों के ट्यूटोरियल्स, और शाम में मगरिब के बाद जो है स्कूल की जो है तालीम चलती। जी आज के इसमें जो है तकरीबन जो है 35 स्टूडेंट्स 35 बच्चे जो है हिस्सा लिए थे और ये बच्चों को जो है तकरीबन 3 महीने से जो है मुसलसल इनके पीछे मेहनत कर को अलग अलग उन्वान पर जो बच्चों की कौन से बच्चों को कौन से टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट रहता है उनके टैलेंट के हिसाब से ये सेलेक्ट करके जो है बच्चों को टॉपिक दिए और माशाल्लाह जो है बहुत सारे बच्चे उसमें अच्छा एक्सेल करें, उनकी हिम्मत अफजाई हुई। एक बच्चों को जो है स्टेज फियर जो था वो स्टेज फियर गया, जिसे स्टेज फियर नहीं था उन्होंने माशाल्लाह जो है खुल को बोले। तो जितना बोल को ही अपकमिंग इंशाल्लाह और भी जो है अच्छा उन्होंने बोलने की उम्मीद रखने की कोशिश करेंगे इदारे की तरफ से। और ये बच्चे जो है यहाँ पढ़ने के बाद करते हैं घर में जो है गेम्स खेलने करते उसके ताल्लुक से पे क्या भी टीच करने का हाँ, घर में माँ बाप जी इसके वास्ते जो है पेरेंट्स को जो है अलग जो है क्लासेस ख़त्म होने के बाद हमेशा जो है रोज़ाना जो है नसीहत कर दें बच्चों को जो है फ़ोन से अवॉइड करो, क्योंकि ये जो है कोरोना आने के बाद जो है बच्चों को ऑनलाइन होने की वजह से हर बच्चों को आई स्क्विंट हो जा रही, स्क्विंट आइज की जो है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ये जो है फ़ोन कितना हो सके उतना जो है अवॉइड करें दे, इनके मेमोरी पावर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा, इसलिए जो है बच्चों को जो है किताबों के ताल्लुक से कोई जो है लिखने की प्रैक्टिस करने जो आइस या तो जो है बच्चों को जो है ओरली क्या भी चीज़ याद दिलाने के वास्ते बच्चों के पेरेंट्स को हमेशा ताकीद कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं इसके साथ हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह।